Hello everyone, Assalamu alaikum. So we are back with the 16th workshop, which is second algorithm of clustering, or you can say second unsupervised learning class. Today is the 16th workshop, and today we'll be learning about DB-scan algorithm, which is not very specifically related to artificial intelligence when we talk about its practical implementation. But yeah, it's an algorithm of machine learning, and it's more into data mining. ये सबसे ज़्यादा डेटा माइनिंग के अंदर यूज होता है बिकॉज द डेटा इन रियल पॉइंट फॉर एआई वी आर नॉट हैविंग सच टाइप ऑफ डाटा जहाँ पे हमारे पास डीबी स्कैनिंग क्लस्टरिंग इतना यूज हो बट या फॉर डेटा माइनिंग वेयर वी आर हैविंग नॉइज इन डेटा सेट्स वेयर वी आर हैविंग different kind of data set and we need to find some sort of patterns, we need to find some sort of affinity in that data. So then we need DB scanning clustering in more specifically data mining. All right, so let's just start. I hope everybody knows about clustering. If someone missed yesterday's class, so let me repeat it for a moment. So clustering is nothing just but itself a grouping of data without being known it's about labels. मतलब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मकसद यही होता है कि लेबल्स के जाने बगैर वो तमाम डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है एज वी हैव डन दिस यस्टरडे. सो सेम जो हो क्या रहा होता है क्लस्टर्स बना रहा होता है. आपने क्लस्टर का नाम पहले शायद कभी सुना हो इन द टर्म्स ऑफ प्रोसेसर्स मे बी कि मेरे सीपीयू के अंदर टू कोर्स के दो क्लस्टर हैं मीन्स कि एक क्लस्टर के अंदर दो मजीद कोर हैं. फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग फॉर एग्जांपल आई एम अ प्रोसेसर इन विच आई एम हैविंग 16 थ्रेड्स एंड 8 कोर्स. तो इस 8 कोर्स के क्लस्टर मैंने जब देखा कितने हैं तो उसमें सिर्फ दो क्लस्टर हैं इन विच दे आर 6 एफिशिएंट कोर्स एंड 2 आर पावरफुल कोर्स. तो ये एक इसको क्लस्टर कहते हैं. क्लस्टर मीन जस्ट अ ग्रुप. यू कैन से कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स और यू कैन से एनीथिंग अपनी जहन नशीन के लिए. सो व्हाट इज डीबी स्कैन? डीबी स्कैन का अपना फुल फॉर्म ही कोई बहुत ही तवील है. Density based spatial clustering of applications with noise. So basically it's a clustering algorithm of course which is specifically used in data mining और ये बेस करता है just on density. इसके दो मेजर चीज़ें हैं डेंसिटी नॉइज. डेंसिटी नॉइज ये इन दो के ऊपर परखा हुआ होता है. ये समझ लो उसकी इट हैज़ टू लेग्स. वन इज बेस्ड ऑन डेंसिटी एंड अदर इज बेस्ड ऑन नॉइज. Without noise it can still stand but its right leg is density. ये डेटा के ऊपर डेंसिटी के ऊपर अपने आप को क्लस्टराइज कर रहा होता है ये एल्गोरिथम कि किस किस तरीके से डेंसिटी ग्रो करी. इसको भी हम आगे जाके इसकी मजीद इंट्यूशन को देखेंगे. एंड वन मोर थिंग डीबी स्कैन तभी पता चलता है अगर कभी रियल लाइफ एग्जांपल में यूज़ करना पड़ जाए जो कि आज तक नहीं मेरे ख्याल से पड़ा हो कभी किसी को क्योंकि मुझे भी नहीं पड़ा. I've been working so long in machine learning but never need to work on this kind of algorithm. But it works better than K means when you are having some different type of data like if you are having moons in your data set, if you are having blobs in your data set. What are moons? आप simply कह लें कि एक आपके पास arbitrary shapes बन रही हो like this. यहाँ पे अगर हमारे पास बात की जाए spherical shape clusters की so K-means can easily fit to these data set or cluster. Hierarchical clustering can also fit on these very easily. But DB-scan is more towards this kind of data set which is also known as arbitrary shape clusters. एक के अंदर एक हो गया because it's moving towards density. इसका algorithm density के ऊपर होता है. इसका algorithm सारा का सारा distance based नहीं होता कि भाई एक स्टेट आप संभाल लो एक स्टेट आप संभाल लो एक स्टेट आप संभाल लो. नहीं इसमें ऐसा नहीं है. इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टेट आप संभाल लो आपकी चारों तरफ की बाउंड्री मैं बनाऊंगा आपकी ईस्ट साइड पे ये बंदा बैठा होगा. तो दिस इज हाउ डीबी स्कैन क्लस्टरिंग इज ऑफनली वर्किंग इन रियल लाइफ. Real life only in data mining. Otherwise I have never seen such point where DB scan real life use or if it has been used so maybe I was wrong but I have never seen a part of its lab applications in AI. All right, so okay, let me zoom out ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा हो. So you can see the animation I have put here.
This is how DBScan usually clusterize the entire data points by putting some sort of circles, and ये सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सर्कल के ऊपर पूरी कहानी होगी, एंड विल सी दैट अबव। ऑलराइट, तो ये हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, लाइक ब्लू पॉइंट एज यू कैन सी हियर, एज यू कैन सी हियर, एज यू कैन सी हियर। तो ये रैंडमली पॉइंट पिक डाल रहा होता है, सारे क्लस्टर जितने भी होते हैं यूजुअली रैंडमली पॉइंट डालता है, हम उनको बताते ही नहीं हो कि भाई डाटा के अंदर यहाँ पॉइंट डाल दो, रैंडमली पॉइंट डालता है, और रैंडमली पॉइंट डालने के बाद ये देखता है। फॉर एग्जांपल इसमें एक चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, फॉर एग्जांपल आपने मिनिमम पॉइंट कितने दिए हैं। अगर आपने मिनिमम पॉइंट दिए हैं 3, तो आज हम मिनिमम पॉइंट नहीं देंगे बिकॉज की नीड नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेंगे कि मिनिमम पॉइंट कैसे देते हैं। अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, जितना आपको प्ले करना हो उस एल्गोरिथम के साथ आज प्ले करें, बिकॉज इसकी क्योंकि रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बट to be very honest, when I was first went for a job, so I was asked about this algorithm because this is implementable in data mining. All right, तो ये आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल के मीन के सॉरी डीबी स्कैन एल्गोरिथम ने पूरे डेटा पॉइंट के अंदर ये तमाम डॉट्स हैं जिनको भी पहचानता नहीं कि ये तमाम डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस डॉट इज लाइक अ रैंडम पॉइंट फॉर डीबी स्कैन विच इज नोन एज स्कोर पॉइंट। उसने यहाँ पे पॉइंट कर दिया। नाउ इफ यू हैव गिवन मिनिमम पॉइंट्स इज इक्वल टू 3, तो ये इतना बड़ा सर्कल बनाएगा कि उसके मिनिमम पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट्स मजीद आ जाएं। आर यू गेटिंग इट और नॉट? टेक इट, अंडरस्टैंड इट विद सम कंसंट्रेशन। इसने कहीं भी रैंडम पॉइंट दिया, एंड इट विल सी के उस रैंडम पॉइंट के जो सर्कल बने, तो उसके अंदर 3 जो है बॉर्डर पॉइंट कह लें या 3 मजीद पॉइंट्स और आ जाएं। बाय द वे दीज आर नोन एज बॉर्डर पॉइंट, इट्स मेंशन हियर। अगर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट्स नहीं आ रहे, 4 पॉइंट आ रहे हैं, 6 पॉइंट आ रहे हैं, 7 पॉइंट हो रहे हैं, सो इट नेवर केयर अबाउट, मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यूजुअली देखते हैं हम यही है कि जब हम मिनिमम 3 देते हैं ना, तो 3 to 4, 3 to 5 चल रहे होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा रहे होते। लेकिन अगर 2 आ रहे होंगे ना, सो इट विल चेंज इट्स पॉइंट, ये अपना पॉइंट चेंज कर लेगा, ये यहाँ पे अपना कोर पॉइंट नहीं बनाएगा। इसको अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात करें, अगर ये हमारा कोर पॉइंट होता दिस वन, तो अगर हम यहाँ कोर पॉइंट की बात करें, अगर हमारा यहाँ पे कोर पॉइंट होता और यहाँ पे हम बना रहे होते सर्कल, तो बताइए अगर यहाँ सर्कल बनता तो इतना बड़ा बनता कि एक बॉर्डर पॉइंट आ रहा होता और मैक्सिमम एक ये ब्लू पॉइंट आ रहा होता, तो मतलब उसके पास सब 2 ही बॉर्डर पॉइंट्स आ रहे होते। अगर यहाँ पे हम इसको एज अ कोर पॉइंट सपोज करता एल्गोरिथम, तो उसने इसको यहाँ पे मूव कर लिया होगा, उसने फिर सर्कल बनाया होगा, फिर उसके बाद एक ये पॉइंट आ रहा होगा, एक ये पॉइंट आ रहा होगा, और कोई खास पॉइंट आ नहीं रहा होगा, तभी फिर कोर पॉइंट ये बन गया। अभी किस मतलब डिस्टेंस के मुताबिक सर्कल ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं एलिप्सन, जिसकी जो हमारे पास एक रेडियस होता है जिसको एलिप्सन बेस्ड डिस्टेंस भी बोलते हैं, जिसको हम आगे जाके मजीद देखेंगे। तो वो ये जितना भी हमारे पास सर्कल ड्रॉ हुआ है ना, तो वो स्कोर पॉइंट का जो रेडियस होगा ना वो कहलाता है एलिप्सन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यहाँ पे गिवन भी है। फ्रॉम दिस ब्लू पॉइंट टू दिस क्या बोलते हैं उसको, पैरामीटर ऑफ द सर्कल इज, जो डिस्टेंस के दरमियान होगा जो रेडियस जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली इट इज नोन एज एलिप्सन। और ये पैरामीटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रेन अ मशीन लर्निंग मॉडल अपार्ट मिन पॉइंट्स। मिनिमम पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला हमारे पास होता है एलिप्सन। ऑलराइट, so what are noise points? Noise points are the point which are left apart the training. For example, अगर आप यहाँ देखें, यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, कुछ पॉइंट्स यहाँ रह गए, so these points are basically the noise points, जो कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कहते हैं ना इधर का रहा तो ना इधर का रहा, सब कुछ छूट गया। तो ये बेसिकली वो चीज़ें हैं, ये वो नॉइस पॉइंट है। और जब आप इनको प्रिडिक्शन में करने जाएंगे ये किस क्लस्टर में आ रहे हैं, तो इट विल बी कैलकुलेटेड बाय नियरेस्ट कौन सा ग्रुप पड़ रहा है। अदरवाइज अगर आप क्लस्टर में मालूम करेंगे, सो दे विल नेवर लाई इन एनी सॉर्ट ऑफ क्लस्टर, ओके। लेकिन जब हम जाहिर सी बात है विजुलाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, तो नियरेस्ट डिस्टेंस को देखते हुए या कोई डेंसिटी देखते हुए वो किसी ना किसी ग्रुप में ज्वाइन हो ही जाता है। ऑलराइट, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? उससे पहले अगर यहाँ तक कोई किसी को कन्फ्यूजन है सो प्लीज टेल मी बिफोर गोइंग फर्दर। लेट मी सी क्यों है।
ऑलराइट, डेंसिटी वाला समझ नहीं आया कि डेंसिटी पर किस तरह बेस करता है। ओके, ये prove करना पड़ता है क्या? ओके, ऑलराइट अयान, आई विल सी दैट अगेन कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन जहाँ तक अयान हैज आस्क्ड के कोर पॉइंट विल आल्सो बी इंक्लूडेड when you mention 3 points. I will see that again. हो सकता है maybe I am wrong in this. I will see that and I will let you know, because अगर आप इस image में देख रहे हैं, so this is a part of this image where we are mentioning minimum points is equal to 3, और core point के अलावा we are having 3 points in every circle when we are inputting minimum point is equal to 3. And as far I know this is the right practice, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर भी रिवीजन के लिए देख लूँगा. It will be good for me as well. All right. What was the another question? I have never done this algorithm without telling EPS. एलिप्सन बताया मगर मैंने कभी ये काम किया नहीं है, लेकिन अगर आप EPS नाम ही बताओ मेरा ख्याल है कि कर लेगा. बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू मेंशन EPS इवन इन डेटा माइनिंग. हम एक कर्वेचर होगा जब आगे देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी हम उसके मुताबिक हम वो कर रहे होंगे, क्लस्टरिंग परफॉर्म कर रहे होंगे. एनी अदर क्वेश्चन गाइस? Any further questions? So we'll move further. Okay, ये सब आज पढ़ेंगे. So आज हम मॉक डेटा सेट पे काम कर रहे हैं. आज हम कोई रियल वर्ल्ड डेटा सेट पे काम नहीं कर रहे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रियल वर्ल्ड डेटा सेट टू डील विद इट राइट नाउ. मैं ढूंढा तो बहुत कोई खास मिल जाए, बट आई वाज नॉट गेटिंग इट एनी रियल वर्ल्ड डेटा सेट, सो आई जस्ट मेक द मॉक वन जो यूजुअली प्रैक्टिस में था सबकी. All right, so you are guys not having any further question. All right. So someone has asked that if you are having a noise point, जो किसी for example this noise point या this noise points, तो ये जो noise हमारे पास है, जब हम इसको predict कर रहे होंगे ये किस cluster में आ रहे हैं, so in which they are going to be predicted. देखें इसका पहला पहला असूल होता है density, second असूल होता है इसका noise. अब ये नॉइज है ना हमारे पास, ये तो खुद एक नॉइज है. जब इसको हम क्लासिफाई कर रहे सॉरी क्लस्टराइज कर रहे होंगे या प्रिडिक्ट कर रहे होंगे कि भाई किस क्लस्टर में रिलेट कर रहा है, सो इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन इस डेंसिटी. डेंसिटी आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है, और डेंसिटी इसमें जो जितनी भी होगी वो मेरे ख्याल से एक्स अपॉन वाई के रेशियो के हिसाब से होती है. एज फार आई नो, आगे जाकर फॉर्मूला लिखे में वी विल सी दैट. तो उन डेंसिटी के हिसाब से ये उस क्लस्टर में उसको असाइन कर देगा. ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, लाइक दिस इफ यू कैन सी हियर. अब यहाँ पे ये क्लस्टर बन गया. अब ये डेंसिटी बेस है ना. अब यहाँ पे अगर हम देखें के मीन्स इन दो में बिल्कुल ही फेल हो गया, ठीक है. डीबी स्कैन इन दो में बहुत बेहतरीन किस्म का चला. डीबी स्कैन इसमें भी अच्छा चल गया, के मीन्स में भी अच्छा चल गया, बिकॉज दीज आर स्फेरिकल, ये तो बच्चा भी कर लेगा. बट इन दिस काइंड ऑफ डेटा सेट जहाँ पे हमारे पास इतना कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो, या दिस काइंड ऑफ डेटा सेट जहाँ पे आपको खुद एक लग रहा हो कि भाई एक ही क्लस्टर होगा इसमें, तो इसमें किस तरह से आप डिविजन्स क्रिएट कर रहे होंगे या किस तरह क्लस्टराइज कर रहे होंगे, किस तरह ग्रुपिंग कर रहे होंगे. यहाँ पे यूजुअली के मीन्स इज मच बेटर, बिकॉज यहाँ पे आप बता भी रहे होते हो के मीन्स को कि इट्स हैविंग मल्टीपल, ये दिस नंबर ऑफ अमाउंट आपके पास ये फीचर है, ये भी आपको मालूम देना पड़ता है. तो उसके अकॉर्डिंगली वो फिर यहाँ पे क्लस्टराइज कर रहा होता है. डीबी स्कैन इज नॉट गुड फॉर दिस टू काइंड ऑफ अप्रोचेस, बट इट्स वेरी गुड फॉर दिस काइंड ऑफ अप्रोचेस. अब हमारे पास डाटा सेट है, अब हम इन दो रिंग को अलग कर सकते हैं. या तो अब ये जो हो रहा है ना के जिस तरह क्लस्टराइज कर रही है बिल्कुल उस तरीके से हो रहा है जिस तरीके से रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन परफॉर्म होती थी कि तमाम डेटा पॉइंट्स को बीच में से आधा कर दिया, क्लासीफाई हो गया सब कुछ. या इसको देख लें, तमाम डेटा बीच में से आधा हो गया, क्लासीफाई हो गया सब कुछ. लेकिन डीबी स्कैन दो क्लस्टर को अलग ही पहचान रहा है इजीली. आगे जाके अयान का एक अयान का था, किसका था, या किसी एनोनिमस पर्सन का सवाल था, जो कि आगे जाके हम ज़रूर उसको डील करेंगे. और जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. ओके, लेट्स जस्ट स्टार्टेड विद डीबी स्कैन क्लस्टरिंग.
हम लाइब्रेरीज कुछ इंपोर्ट कर लेंगे, लाइक वी गोना इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, वी गोना इंपोर्ट dbscan, we gonna import k we gonna import nearest neighbors. This is not k nearest neighbors, this is nearest neighbor to find the amount of nearest neighbors. all right, और ये डेटा सेट हम इंपोर्ट करेंगे एक्सकेलन से. ये मॉक डेटा सेट है, दिस इज नॉट रियल वर्ल्ड डेटा सेट. और यहाँ से हम numpy की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे. और मॉडल ऑफ द डे इज dbscan. लेट मी राइट हियर एज अ ट्रेडिशन एंड देन विल मूव फर्दर. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये एक फंक्शन है डेटा सेट्स का, मेक मूव्स. ये जितना भी डेटा डेवलप करेगा ना, वो उसकी नेचर ऐसी होगी कि एक रिंग, हाफ रिंग ऐसे बन रहा होगा, या एक क्रीसेंट इस तरह बन रहा होगा, एक मून इस तरह बन रहा होगा, और एक क्रीसेंट इस तरह बन रहा होगा. ये थोड़े टिल्टेड हो सकते हैं, बट इट गोइंग टू बी लाइक दैट. अगर आप देखो नीचे तो ये इस तरह बनेंगे. ठीक हो गया? ऑलराइट. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी विजुलाइजेशन हमने कर्ली प्लॉट्स कंडक्ट कर लेके हमने. अब x1 और x2 क्या हो रहा है? When we mention data sets dot make moons n samples 2500, ठीक है ना, ये आपके पास बेसिकली x के अंदर हमारे पास दो, एक तरीके से यूँ कह लें कि कॉलम्स मौजूद हैं. अगर हम स्पेशली x को विजुलाइज करें, सॉरी जस्ट व्यू करें, एक्सप्लोर करें, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है टू कॉलम्स हैं. एक कॉलम 1 है, एक कॉलम 2 है. एरे की अप्रोच हमारे पास हमेशा 0 और 1 की होगी. तो हम अब दोनों कॉलम को इंडिविजुअली लेंगे, क्योंकि हमारे पास दो बन रहे हैं ना, दो मूव्स बन रहे हैं, तो हमारे पास दो ही कॉलम बन रहे हैं. ऑलराइट, लेट्स सी. ओके, दिस जस्ट हैंग. ओके ओके, अब हमने x, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली इस, लेट मी एक्सप्लेन इट लेमन टर्म्स. यहाँ पे हम x लिखा है, x इज आवर डाटा इन array, and then here we are mentioning rows, and then here we are mentioning columns. ठीक हो गया? अब यहाँ पे हो क्या रहा होता है, अगर आप लिख दो कॉलम लगा दो रोज या कॉलम की जगह, तो इट मीन्स कि तमाम कॉलम्स आ जाएं या तमाम रोज आ जाएं. But if you specify any number in rows or columns, so it gonna specifically call that only column or only row. अब जैसे यहाँ पे हमने x1 में इज इक्वल टू x लिख कह दिया है कि कॉलम और 0, सो इट मीन्स कि भाई ये रो 0 कॉलम की, मतलब हमारे पास x जो फर्स्ट कॉलम थी उनकी तमाम रोज हमारे पास x1 में. Then you have said x2 is equal to x कॉलम कॉमा, हमारे पास फर्स्ट जो सेकंड कॉलम थी, क्योंकि 1 है यहाँ पे इंडेक्स, तो सेकंड कॉलम की जितनी भी तमाम रोज होगी वो सब हमारे पास इसमें आ जाएंगी. तो इस तरीके से हमने अपने डेटा सेट को यहाँ पे x1 और x2 में दोनों कॉलम्स को यहाँ पे इस तरीके से स्प्लिट कर दिया. नाउ टू विजुअलाइज दिस वी गोना परफॉर्म दी, यू कैन से, क्या किस तरह बताऊं मैं आप लोगों को, वी गोना विजुअलाइज इन स्कैटर प्लॉट बाय x1 टू x2. वी नॉट रिलेट दिस टू y. हम इसको y से रिलेट नहीं करेंगे, नहीं तो मून्स नज़र नहीं आएंगे आप लोगों को, क्योंकि y के कंपैरिजन में मून्स नहीं है. ये x और अपने x के कंपैरिजन में मून्स है. और क्लस्टरिंग हमेशा जो होती है, ग्रुपिंग हमेशा x into x के अंदर ही हो रही होती है. ऑलराइट, वी विल सी दिस. जिस तरीके से हमने कल परफॉर्म किया इसके ऊपर, हमारे पास देयर वाज अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल सेंटेंसेस, और हमारे पास वो जितना भी परफॉर्म हुआ, वी डिडंट स्पेसिफाई x, y while training, we just specify x there. Today I am having little sickness, so I am not speaking so loud. If you are having any issue, so you can ask me to repeat it again, any topic. बिल्कुल अयान, मून्स के अलावा बिल्कुल मल्टीपल हो सकते हैं. देयर इज मेक ब्लॉब्स एज फार आई नो. लेट मी शो यू मेक ब्लॉब्स कैसा होता है. आई डोंट नो कि ये कोड चलेगा नहीं चलेगा. राइट, गुड. ओके, यहाँ पे आप नॉइज मेंशन नहीं कर सकते खुद से. ओके, लेट्स सी. मैंने एक दफ़ा ये ट्राई किया था इन माय अर्ली एजेस, जब मैंने डीबी स्कैन बहुत पहले परफॉर्म की थी, तो उसको विजुलाइज कर लेते हैं.
तो देखें ये भी ब्लॉब्स है, ये केमिन से भी चल जाता है। तो इस तरीके से ये ब्लॉब्स है, इस तरीके से बहुत सारे हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर फर्दर, सो सिंपली गो टू sklearn sklearn डॉट डेटा सेट्स, बस। और यहाँ पे जाके आप सारा अनसुपरवाइज्ड डाटा होगा आप कहीं ना कहीं से निकाल ही लेंगे। लेट मी सी अगर कहीं से हो गया। इसके अलावा किसी को कुछ सवाल है यहाँ तक, हम कोडिंग में मजीद चलें? ऐसे लोग बोल रहे हैं नो वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। ओके, यहाँ देखने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के होंगे ही। ओके 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 ओके, ऑल राइट, नहीं है यहाँ पे तो नहीं मिल रहा। एस के लर्न डॉट डेटा सेट्स, ओके, क्लस्टरिंग। ओके, यहाँ पे आप एक केस में घुस जाएंगे तो फिर बाकी सारे एक्सेस हो ही जाएंगे। और राइट, यहाँ पे मेक ब्लॉब्स का है। ओके। हम्म, यहाँ पे लिखा हुआ है सी ऑल्सो मेक क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेक ब्लॉब्स के अलावा भी बहुत सारे हैं। तो आप कोई सा भी एक्सेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर मॉडल के लिए कि क्या अच्छा रहेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो यू कैन मेक योर ओन स्पेसिफाइड डिज़ाइन, जो आपको बनाना हो आप बना सकते हैं बिल्कुल, और उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज रियल वर्ल्ड डाटा इस पर मिलना बहुत मुश्किल है। ऑलराइट, हमको नॉइस पॉइंट निकालने होते हैं। यस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉइस पॉइंट। लेट मी, एक मिनट, यहाँ पे हम क्योंकि खुद ही दे रहे हैं नॉइस। वेट, हम मून्स पे करेंगे, ब्लॉब्स पे तो कल भी हो गया एक तरीके का। ब्लॉब्स पे इतना मुश्किल नहीं होता, ब्लॉब्स हो जाते हैं आराम से। असल चीज़ तो मून्स है। ऑलराइट, सो आफ्टर हमने विजुलाइज कर लिया, अब इसको व्हाट द हेक जस्ट हैपन, क्यों भाई? ओके, नॉइज मैंने बहुत ज़्यादा रख दिया है, वो बेचारा मून 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 ही नहीं रहा। नॉइज ज़्यादा रखने से देखें क्या होता है। इतना ज़्यादा नॉइज हो गया कि वो बेचारा मून अब मून ही नहीं रहा। ऑलराइट, सो नाउ गोइंग टू सी दी we're going to explore about ellipsons, but what are ellipsons? As I have already told you, ellipson is basically the radius of the circle जो core point से develop हो रहा होता है। उसका एक algorithm है जो कि बहुत पुराना algorithm है, note now। उसका यहाँ pseudo code लिखा हुआ है कि अगर आपको कभी खुद से कोड करना हो किसी भी लैंग्वेज के अंदर, so you can do this। कि यहाँ पे डाटा सेट, ये प्रोसीजर इसका ये है कि आप ये कोडिंग करेंगे, लाइक फॉर आई फॉर जे इज इक्वल टू 1, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्टेंस मालूम करेंगे एक एक्स से दूसरे एक्स तक, देन यू विल फाइंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस टू नियरेस्ट 3। ये पूरा इसका यहाँ पे एल्गोरिथम लिखा हुआ है, दैट हाउ वी परफॉर्म और फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ ईपीएस। लेकिन हमारे पास और भी आसान कहानी है, तो अभी फ़िलहाल हम वो देखेंगे। और अगर आप इसको इससे कंपेयर करेंगे बाद में, सो यू गोना सी कि कितना आसान है। यहाँ पे भी हम मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा बना बनाया फंक्शन है, हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है नियरेस्ट नेबर की। और यहाँ पे हम लोग अल्लाह का भला करे डिस्टेंस दे रहे हैं, उसको मतलब सॉर्टिंग कर रहे हैं तमाम जो हमारे पास डाटा है। तो यहाँ पे सब हम आराम से ना कर्वेचर विजुलाइज कर सकते हैं। जो हाईएस्ट कर्वेचर होता है हम उसके ऊपर जाते हैं और वहाँ से फिर अपना ट्रेनिंग विद डीबी स्कैन मॉडल करते हैं। ये वैसे अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है ना, तो कोई मुश्किल की बात नहीं है ये, क्योंकि मेरे भी समझ में नहीं आता था भाई ये क्लस्टरिंग परफॉर्म कैसे कर रहा है। बहुत टाइम लगा था मुझे इनिशियल टाइम, लेकिन एक वक्त आएगा ये आप लोगों को समझ में आएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। But why the reason of teaching this algorithm, that why I'm not ignoring this one, पहले मैंने ये include नहीं कर रखा था in my outline, but I have just included this because it is important in data mining। And I just got remember when I first applied for machine AI engineering job, काम इतने बड़े बड़े कर रखे होते हैं, सवाल वो बच्चों वाले पूछ रहे होते हैं कि याद नहीं रहते आपको। So they asked me about DBscan algorithm and I was weak on this algorithm that time. They didn't ask the mathematical intuition or something। वो उन्होंने सब इतना पूछा that how this algorithm works। So in that time I was stuck and that's why I decided to perform the algorithm right now। Okay,
ऑलराइट, नॉइज का काम क्या होता है, हम क्यों नॉइज मेंशन कर रहे होते हैं? नॉइज का काम होता है नॉइज प्रोड्यूस करना। जिस तरीके से अगर आप यहाँ देखें, गुड क्वेश्चन है। अब देखें, अब हमारा डाटा है, हमारे पास डाटा के ऊपर हल्की हल्की नॉइज भी आ रही है, ये एक स्मूथ लेवल पे नहीं है, ठीक है, और ये सारा नॉइज बेस्ड ही बना हुआ डाटा, ये मूव से उसने बनाया है लेकिन सारा नॉइज बेस्ड। अब ये चाहें तो हम नॉइज की इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, दिस पासिंग नंबर है, मैं यहाँ पे कर दूंगा 1, तो ये डिक्रीज हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे अब, तो कितने बारीक बारीक बन गए, सारे आपस में मिल गए हैं बिल्कुल, डेटा पॉइंट्स उतने ही है, डेटा पॉइंट एक भी कम नहीं है, लेकिन सारे आपस में बिल्कुल कंजस्टेड हो गए हैं। लेकिन अगर मैं नॉइज बढ़ा दूंगा, सो एवरीवन विल हैव सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस, और फिर जाहिर सी बात है नॉइज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। So this is how we were having noise in previous visualization. All right, so let's find the nearest neighbor. All right, now wait for, यहाँ पे हम नियरेस्ट नेबर खुद से पास कर रहे हैं दैट वी आर, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग, मैं भूल गया इसमें नियरेस्ट नेबर के भी एक ऑप्टिमल वैल्यू की फाइंड करने का एक तरीका होता है, सो वी विल फाइंड दैट ऑन द इंटरनेट लेटर। मैं फाइंड नहीं करता बिकॉज आई नेवर वर्क ऑन दिस एल्गोरिथम। सो यहाँ पे हम बेसिकली हार्ड कोडिंग कर लें या कुछ भी कह रहे हैं, हमने पास कर दिया कि हमारे मिनिमम नेबर या नियरेस्ट नेबर 2 होने ज़रूरी है। सो ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग इट गोना ड्रॉ, अगर आप 2 ना रखें तो 3 रख के देखते हैं। आई होप इट विल नॉट रेज एनी सॉर्ट ऑफ एरर। आपकी सुन ली एनी अनोनिमस पर्सन जो भी था, तो यहाँ पे हम उसके हिसाब से फिर हाईएस्ट कर्वेचर विजुलाइज, हाईएस्ट कर्वेचर देखेंगे कि हाउ इट्स परफॉर्मिंग। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट रन दिस कोड। और यहाँ हो क्या रहा है, दिस इज नियरेस्ट नेबर्स। ये क्या कर रहा होता है, जितने भी आपके पास डाटा होते हैं ना, आप उसके फिर आप फंक्शन बना रहे हो, फंक्शन स्टोर करा रहे हो किसमें, NEIGH के नाम से नए का फंक्शन बनाया, आप उसमें स्टोर करा रहे हो। हमने इसमें फॉर एग्जांपल पास कर दिए कि n नेबर्स 3 रख रहे हैं या मिनिमम पॉइंट 3 रखना है। सो इन दिस नेबर्स इज इक्वल टू नेम डॉट फिट एक्स। ये तमाम डेटा को इस तरह मतलब यूँ कहना कि ट्रांसफॉर्म करेगा। ये हम रियल डेटा को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, हम उसका एक मॉक डेटा जनरेट कर रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और उसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा दैट वी कैन अंडरस्टैंड द मेन, और यू कैन से हाईएस्ट कर्वेचर, और हाईएस्ट कर्वेचर इन द एफिनिटी ऑफ एंटायर डेटा सेट, जो कि भी हम देखते हैं। जब हमारे पास हाईएस्ट कर्वेचर आ जाएगी, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर आई है, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कर्वेचर होती है वही हमारा एलिप्सन रेट होता है। हमें एलिप्सन इस तरह जल्दी से आराम से मालूम नहीं होता, तो इसलिए एलिप्सन रेट तो लाजमी खुद से स्पेसिफाई करते हैं टू मेक आवर मॉडल परफेक्ट। ऑलराइट, सो हियर वी आर ट्रांसफॉर्मिंग एक्स डाटा इनटू NBRS, और इस वेरिएबल में क्या हो रहा है, हमारा डाटा ट्रांसफॉर्म होकर इसमें जा रहा है अकॉर्डिंग टू वर्ड, अकॉर्डिंग टू आवर नियरेस्ट नेबर्स। फिर ट्रांसफर होने के बाद क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं NBRS.K neighbors x। अगर मैं आपको दिखा दूँ कि क्या बना रहा है, बेसिकली ये एक ट्यूपल बना रहा है जिसमें हमारे पास डिस्टेंसेस भी हैं और इंडेक्सेस भी हैं। लेट मी शो यू डिस्टेंसेस। ये हमारे पास बन गया पूरा एक एरे, ठीक है। लेट मी शो यू इंडाइसेस। ये हमारे पास बन गया है, हर डेटा पॉइंट का उसने स्पेसिफिक इंडेक्स दे दिया है। अब ये इंडेक्स क्यों दिया है, और ये 0 के बाद 853 क्या कर रहा है, 853 के बाद 1026 क्या कर रहा है, फिर 1 क्या कर रहा है, फिर 2 क्या कर रहा है, ये इतना बे ऑर्डर्स क्यों है, यही तो प्रॉब्लम है। ये सारे डेटा पॉइंट्स की जो ऑर्डर्स होती है ना, ये सारी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हम ट्रांसफॉर्म करने के बाद इन डेटा सेट की इंडेक्स ही मालूम कर रहे होते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर रहे होते हैं, और फिर इनको इस इंडेक्स की मदद से हम इनको सॉर्ट करते हैं, ठीक है। ये इन इंडेक्स की मदद से हम इसको यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव इंडाइसिस हेयर एज वेल। लेकिन हमें इंडाइसिस की नीड नहीं है, क्योंकि अभी हम कोई अपना स्पेसिफिक एल्गोरिथम नहीं लगा रहे, हमारे पास बने बनाए एल्गोरिथम है नंपाई का, नंपाई डॉट सॉर्ट, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंसेस डाल देंगे। बट सिंस दिस रिटर्न बोथ वैल्यूज, डिस्टेंसेस की भी और इंडाइसिस की भी, तो हमें यहाँ पे इंडाइसिस लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्यूपल स्टोर हो जाएगा, या कुछ इसी इस तरह की कहानी होगी जो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगी।
we just want distances here जो कि हम पहले ला चुके हैं. So after training this, after transforming this entire data set, we're going to arrange the data set in uh, uh, you can say horizontal row, horizontal axis, and then we're gonna print the second column. या आप यूँ कह रहे हैं कि हम उस डिस्टेंस में से सेकंड कॉलम ही विजुलाइज करेंगे जो हमारे लिए यूजफुल है, या सेकंड, क्योंकि फर्स्ट कॉलम जो होगी ना वो हमारी बेसिकली यूँ कह लें कि दिस दैट वोंट बी सच गुड बिकॉज वो एक यूँ कह लें कि इंडेक्स बेस्ड है. हमें सेकंड कॉलम चाहिए जिसकी दरमियान हम लोग डिस्टेंसेस निकाल रहे हैं, एंड देन वी गोना प्लॉट दिस ऑल डिस्टेंसेस. और जब हम लोग इनको प्लॉट करेंगे, व्हेन वी विल प्लॉट दिस एंटायर डेटा सेट, तो यहाँ पे हम इसका हाईएस्ट कर्वेचर मालूम करेंगे कि हाईएस्ट कर्वेचर हमारे पास क्या है. अगर हम देखें यहाँ पे हाईएस्ट कर्वेचर क्या है, तो ये हम बाय आई बता सकते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे हाईएस्ट कर्वेचर 0.03 आ रहा है या 0.04 आ रहा होगा. इनमें से कोई एक वैल्यू होगी, कोई एक वैल्यू हमारे मॉडल में चल जाएगी, और हम चल तो सारी जाएंगे, लेकिन जब प्रिडिक्शन कर रहे होंगे ना तो ये एरर जनरेट कर देगा अगर हमने एक्सेप्टेबल वैल्यू एपीएस की नहीं दी होगी. तो अगर हमने एक्सेप्टेबल वैल्यू एपीएस की नहीं दी होगी और एरर आ जाएगा, तो हम अपनी वैल्यू को या तो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे पॉइंट्स के हिसाब से, टू एडजस्ट दैट मॉडल अकॉर्डिंग टू अवर प्लॉटिंग बेस, जो हम प्लॉटिंग कर रहे हैं तमाम क्लस्टर्स की. ये थोड़ा सा बहुत टफ कॉम्प्लेक्स कोड था. अगर यहाँ नहीं समझ में आया, सो आई एम रेडी टू एक्सप्लेन इट अगेन. वी हैव सो मच टाइम. किसी को भी कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क मी राइट नाउ. टिल दैट लेट मी ड्रिंक सम वाटर. Any further question, guys? I know we have 16 to 20 seconds gap in our talk, so okay. So what is data mining? Someone has asked what is data mining. So data mining is like a data mining is a science-based subject, और लेकिन ये practical implementation भी है इसकी, ऐसी बात नहीं है. So it's a like practice of analyzing large databases in order to generate more information. मतलब हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल किस तरीके से बताया जाए आपको. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डाटा, गूगल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं. गूगल असिस्टेंट इतनी आसानी से नहीं बन गया था. वी आर हैविंग मैनी ह्यूमंस लाइक मेल फीमेल, सब डिफरेंट आवाज़ें थी. तो हर बंदे की आवाज़ को अगर लेबल नहीं होते कि किसने क्या बोला, तो उनके स्पेसिफाइड फीचर्स हम कलेक्ट कर रहे होते हैं. देन वी आर और डीप लर्निंग, दो सिनेरियोज आर हैविंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स. तो उसमें वैसे भी क्लस्टरिंग हो रही थी सारी. तो फिर क्या हो रहा होता है कि डेटा माइनिंग वहाँ परफॉर्म हो रही होती है. डेटा माइनिंग बहुत ज़्यादा हाई कंप्यूटेशन रिक्वायर करती है. टू बी मेंशन दैट मल्टीपल इट रिक्वायर्स मल्टीपल जीपीयू एज कम्पेयर टू डीप लर्निंग. डीप लर्निंग कम जीपीयू रिक्वायर करती है, बट डेटा माइनिंग रिक्वायर्स मोर जीपीयूज. तो क्या कर रहा था, एक एग्जांपल है शज़ाम ऐप, अगर आपने देखी हो. सो इट रिकॉग्नाइजेस दिस सॉन्ग विद इन अ सेकेंड. कहीं सॉन्ग चल रहा हो, आप शज़ाम ऐप खोलेंगे, इट रिकॉग्नाइजेस सॉन्ग विद इन अ सेकेंड. बहुत रेयर से केस होता है कि आवाज़ ज़्यादा ख़राब हो या कुछ ऐसा हो कि वो 2 3 या 4 सेकंड रहे अगर नेट अच्छा ना हो. Otherwise, if you are having 2 3 Mbps internet with minimal latency, it gonna recognize the song in 1 second. सब यही नहीं, आप उसको देख लें, गूगल को ही देख लें. व्हाट गूगल हैव डन लास्ट डे और मे बी अ डे बिफोर, दे हैव इंट्रोड्यूस अ वेरी वंडरफुल फीचर इन विच यू कैन नो द सॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल वी फॉरगेट सम सॉन्ग और हमें उनकी सब रिदम याद आ जाती है, एंड वी जस्ट लाइक वी करके साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इन आवर माइंड. But if you want to know that sound, you can simply navigate to Google Assistant right now, and you can just say, "What is this song?" It will navigate to the page, और वहाँ पे आप करके humming करें, and then it gonna recognize कि भाई ये आपकी जो humming है ये किस से सबसे ज़्यादा recognizable है, किस song से सबसे ज़्यादा recognizable है. तो इसका डाटा प्रोड्यूस होने के लिए इस डाटा को हमें वी कैन से माइनिंग प्रोड्यूस करनी पड़ती है. इस डाटा को मजीद कम डाटा से ज़्यादा डाटा जनरेट करना पड़ता है, जिसकी मतलब इट्स लाइक अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मोर एनोमलीज, फाइंडिंग मोर पैटर्न्स, मोर कोरिलेशन विद इन द लार्ज डाटा सेट टू प्रिडिक्ट आउटकम्स. तो ये काफ़ी ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्निक को यूज़ करने के लिए हम डाटा माइनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो वहाँ जब हमें क्लस्टरिंग परफॉर्म करनी होती है, देन we sometimes use dbscan algorithm. Otherwise there are more techniques in deep learning
for clustering as well. More specifically, autoencoders and autoencoders क्या था और GANs, the most favorite algorithms of mine. All right. Okay. So now NP dot sort समझ नहीं आया. NP sort is nothing. NP sorts of sorting कर रहा है. इसमें अंदर एक quick sort का algorithm होता है रोहित. Quick sort algorithm maybe you have learned it in your third semester if you have passed it. तो वो जो quick sort algorithm होता है वही NP sort के अंदर होता है. आपको बनाना नहीं पड़ता. NP dot sort में हम जो जिस तरीके से हम पूरा का पूरा array पास कर देंगे या जो भी पास कर रहे हैं वो उसको sort कर देगा from 0 to maximum value, the minimum value to maximum value. All right. Okay. Someone has answered the question. Can you tell me about Vika tool and why ML engineer use it? All right. Vika is an open. I don't know much about this, but Vika is actually related to data mining with some open source. मैंने कभी इस पर खास काम नहीं करा because it usually have Java APIs और मैं data mining से कभी इतना मेरा वाबस्ता नहीं रहा. So I have never worked on it. बस इतना मुझे मालूम है कि that Vika is a platform or a tool for data mining with open source machine learning, and the latest version of Vika was Vika 3 as far as I know. But I have never worked on Vika so much. If you want to explore it, you can explore it as well. I will explore it on my behalf as well today. All right. डेटा क्या यूज हो रहा है आज इसमें? हम डेटा खुद से जनरेट कर रहे हैं आज इस एल्गोरिथम में. दोबारा देखते हैं इसको. कैन यू प्लीज रिपीट हाउ दिस एल्गोरिथम वर्क एंड देन ओके. ऑल राइट. ऑल क्वेश्चंस अंडरस्टूड. तो मतलब दोबारा से पहले से आते हैं. देखिए ये है एक्स और वाई. इसके अंदर हम क्या स्टोर करा रहे हैं? डेटा सेट्स डॉट मेक मूव्स. ये एल्गोरिथम क्या कर ये मेथड क्या कर रहा है या ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी आप बोले, कि कुछ नहीं कर रहा. ये जस्ट डाटा इस तरीके से बनाएगा कि आपका जो डाटा हो उसकी जो एफिनिटी हो या पैटर्न्स हो वो मूव्स टाइप हो इस शेप के अंदर. यूजुअली यूं नहीं होती हैं, बनती यूं ही है यूजुअली. तो वो इस तरह बनेगी. अब आप जितना ज़्यादा नॉइज बढ़ाते चले जाओगे उतना ज़्यादा मतलब नॉइज का लेवल बढ़ता चला जाएगा. आप चाहो तो नॉइज को रन भी कर सकते हो, जैसे यहाँ बोल रहा है नॉइज को रन कर दो. आप चाहो रैंडम स्टेट को रन कर दो, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा. रैंडम ही डाटा मिले ताकि हम थोड़ा सा उस पर काम तो परफॉर्म करें. शफल बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है तो हमें उसको शफल करने की ज़रूरत नहीं है. एन सैम्पल्स बाय डिफॉल्ट 100 होते हैं, लेकिन 100 सैम्पल से क्या बनेगा? तो अभी हमने 2500 सैम्पल्स दिए हैं उसको. तो ये डाटा जो जनरेट कर रहा है ये सब इस तरह डाटा को जनरेट कर रहा है कि हमारे पास जब उनको प्लॉट करेंगे तो x1 को x2 से, मतलब एक कॉलम को दूसरे कॉलम से स्कैटर प्लॉटिंग करेंगे तो उसकी सब इस तरह की मून टाइप प्लॉटिंग हो रही होगी. सिर्फ ये परफॉर्म हो रहा है. राइट. ओके. तो और यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि दिस फर्स्ट नंबर इज रिप्रेजेंट्स रोज. यहाँ पे हमने कॉलम दे दी तो इट मीन्स कि तमाम रोज वो ले ले. एंड सेकंड नंबर, ये सेकंड पैरामीटर रिप्रेजेंट्स कॉलम्स. यहाँ पे 0 दे दिया तो मतलब फर्स्ट कॉलम ले ले अपने पास, स्टोर करा ले. एंड देन इन 1 वी हैव पास इन x2. सो मतलब सेकंड कॉलम जो होगा हमारा इंडेक्स के मुताबिक फर्स्ट है, और वैसे सेकंड कॉलम जो होगा हमारा उसकी तमाम रोज हमारे पास x2 में स्टोर होते हैं फ्रॉम द x. Then we have visualized the entire data set, and I hope ये सारा clear हो गया. और let me see one more time. Okay, can you explain the indices again and quick sort? All right. Okay, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे हमें nearest neighbors के हिसाब से हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना था. अभी हम nearest neighbor खुद से फाइंड नहीं कर रहे लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम nearest neighbor खुद से दे रहे हैं. लाइक वी आर गिविंग 3 कि भाई 3 नेक्स्ट टेबल रख के आपने डेटा सेट को ट्रांसफॉर्म करना है. अभी इस हिसाब से पूरा डेटा सेट को ट्रांसफॉर्म करेगा. इट्स काइंड ऑफ लाइक प्री प्रोसेसिंग. इट्स नॉट अ प्योर प्रोसेसिंग बट इट्स काइंड ऑफ लाइक प्री प्रोसेसिंग. प्री प्रोसेसिंग कह लें यहाँ पे डेटा एक्सप्लोरेशन कहना ज़्यादा बेहतर है बिकॉज वी एक्सप्लोरिंग डेटा हेयर. एंड व्हाट इज इंडाइसिस डूइंग हेयर? देखिए एनबी डॉट के नियरेस्ट नेबर जो है ना क्या परफॉर्म करता है. तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या रिटर्न कर रहा है, ये हो गया हमारे पास एरे. ये एक एरे नहीं दे रहा, एक एरे दे रहा है हमको ये डिस्टेंसेस का, एक एरे दे रहा है हमको इंडाइसेस का. अगर हम दोनों को ही डिस्टेंसेस में पास करा देते तो हमारे पास वो वैल्यू वैल्यूएबल नहीं रहती बिकॉज हमारे पास इंडाइसेस भी आ रहा है. ठीक है ना. ये इन सबके इंडेक्स वैल्यू भी दे रहा है. वी डोंट नीड इंडेक्स वैल्यू हेयर इन वाइल सॉर्टिंग. ठीक है ना. वी जस्ट नीड दीज वैल्यूज.
तो हमने इंडाइसेस को सेपरेटली ले लिए और डिस्टेंस को सेपरेटली ले लिया है एरे के अंदर। यहाँ पे सिर्फ हमने ये किया था, एंड देन वी गोना सॉर्ट ऑल द डिस्टेंसेस वी हैव। यहाँ पे क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम होता है जो कि वी आर यूजिंग फ्रॉम numpy। लेट मी मेंशन हियर numpy sorting algorithm uses quick sort, राइट। तो यहाँ पे ये क्विक सॉर्ट यूज कर रहा है, ऑलराइट। नाउ वी गोना विजुलाइज दिस। अच्छा, फर्क क्या है ये भी देख लेते हैं। अगर हम इसको विजुलाइज करते हैं, too many indices for the array, ऑलराइट। दैट इज व्हाई वी आर, क्योंकि जो हमारे पास टोटल इंडाइसेस थी ना वो इतनी थी नहीं। हम ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहे हैं वो किसी एक साइड पे हो रही थी, और ये इस साइड पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है हमारे पास, इस साइड पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही। या दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस। वाओ, व्हाट जस्ट हैपन? या सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से विजुलाइज कर लिया है। सो लेट्स सी कि हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर कर्वेचर कर्वेचर आपको मालूम होगा दैट हाईएस्ट सर्कुलर, यू कैन से नेचर ऑफ हाईएस्ट सर्कुलर बॉडी, तो उसको कर्वेचर बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कर्वेचर जो है 0.03 के दरम्यान से लेकर 0.04 के दरम्यान तक बन रहा है। सो वी विल सी के कहाँ तक हमारा मॉडल सपोर्ट करेगा इसको। तो अगर हम ट्रेनिंग करें मॉडल की, ऑलराइट, अभी हमने इसको दिया हुआ 0.5, जिसको हम रिड्यूस करके कर देंगे 0.3। अगर इस पे हमें विजुअलाइजेशन एरर दे देगा, इंडेक्स का अगर आउट ऑफ बाउंड चला जाता है, अगर इतना कम दे दिया हो हमने, तो फिर हम इसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, ऑलराइट। Okay, so it has given error that index 2 is out of bounds for access 0 with size 2. Alright, तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इसको। कितना बढ़ाएं इसको? कि नो 3.5 कर देते हैं। It's still very low. Let me do directly 4. ये अभी भी काफी लो है। वाओ, आई नॉट थिंक सो कि अब ये मजीद लो होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये मेरे ख्याल से चलता रहेगा जब तक हम 0.5 तक नहीं पहुंचेंगे। ऑलराइट, 4.45 पे चल गया है। लेट मी सी 4.4। नहीं, 0.45 ही चल रहा है उसने, उससे कम में, उससे ज़्यादा चलना ही नहीं है उसने। ऑलराइट, सो इट हैज़ क्लस्टराइज। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर, तो यहाँ पे हमने वैल्यू जब जनरेट करी थी ना, तो हमने नॉइज स्पेसिफाई किया था 0.05। वैसे तो हमें पता है कि इसके अंदर नॉइज 0.05 पे सबसे ज़्यादा अच्छी क्लस्टरिंग होगी, लेकिन विजुअलाइजेशन जब हम कर रहे थे हाईएस्ट कर्वेचर की, तो यूजुअली हमें नहीं पता होता कि कौन सी वैल्यू डालने। तो हम कर्वेचर देख के बता रहे होते हैं कि हम कितना नॉइस लेवल डालेंगे। तो इस कर्वेचर के दरमियान जो भी वैल्यूज आ रही होती हैं हम वो डाल देते हैं, और कर्वेचर हमेशा बनेगा जो हमारे पास मैक्सिमम, जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम सैंपल्स एंड हो रहे होंगे। अब यहाँ पे 2500 सैंपल्स थे, तो जहाँ पे मैक्सिमम सैंपल्स एंड हो रहे थे, तो सबसे ज़्यादा कर्वेचर वही बन रहा होता है। अब इसके अकॉर्डिंगली 0.5 है, मे बी हमने नेबर्स को ज़्यादा दे दिया हो। लेट्स सी। ऑलराइट, नहीं सही दिए थे। ऑलराइट, तो यहाँ पे नेबर से थोड़ा सा कर्वेचर डिफरेंट हो रहा है, लेकिन इतना नहीं होता। इतने छोटे मोटे नंबर से नहीं होगा, ज़्यादा नंबर कहीं ज़्यादा चेंज आएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो 0.3 से 0.4 के दरमियान बनना था, 4-5 के दरमियान। तो ये 4-5 पे आके ही इसने कहा कि भाई ये इसके ऊपर क्लस्टर इस तरह डेवलप हो रहे होंगे। लेकिन अगर हम ऊपर जाएं तो हमारा जो एक्चुअल डाटा है ना वो 0.05 का है। अगर हम उसके ऊपर क्लस्टर्स परफॉर्म करें, क्लस्टरिंग परफॉर्म कर रहे होंगे, तो हमारा बिल्कुल मेरे ख्याल से बहुत प्यारी होनी चाहिए विजुलाइजेशन। अगर आप देखें तो खैर इतना ख़ास फ़र्क नहीं है,
और ये कोड मैंने बहुत तेज़ी से समझा दिया। अब बताएं इसमें समझ में क्या नहीं आया, बिकॉज ये काफ़ी आसान था। मैंने कहा क्लस्टर विजुलाइजेशन आप सबको आती है, इसमें कुछ समझ नहीं आया या इसमें कुछ समझ में नहीं आया। सो वी हैव सो मच टाइम, हमारी वर्कशॉप यहाँ पे ख़त्म हो गई है। सो देर इज लॉट ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर Q&A। नाउ यू कैन आस्क Q&A एट ह्यूज स्पीड। जी बिल्कुल अयान, एपीएस में हम सर्कल का रेडियस बता रहे हैं। Yeah, there are some techniques to know about the accuracy of clustering, but there are no specific methods to find scores specifically in scikit-learn. That is why we are knowing by our eyes, हम visualize कर रहे होते हैं इसको। अच्छा, एक्यूरेसी जो होती है ना, एक्यूरेसी का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी किस चीज़ की होती है? एक्यूरेसी कभी भी रिग्रेशन में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी का हम सब क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिडिक्शन। अब उसमें क्या होता है एक्यूरेसी के अंदर, कि कितने को सही प्रिडिक्ट किया, कितने को उसने गलत प्रिडिक्ट किया, तो उसको हम एक्यूरेसी करार दे रहे होते हैं उस रेशियो को। लेकिन यहाँ पे तो हमें नहीं पता, हमारे पास यहाँ पे लेवल्स नहीं है। दैट इज वाई वी आर विजुअलाइजिंग इट, बट देर आर स्टिल सम टेक्निक्स टू नो टू इवेल्युएट आवर मॉडल। एक्यूरेसी उसके ऊपर निकाली जाती है। देर आर सम वेज टू इवेल्युएट आवर मॉडल, जो कि हम आगे देखेंगे जब हम न्यूरल नेटवर्क्स पे काम कर रहे होंगे और अनसुपरवाइज्ड होंगे। सो देर आर सम इवेल्युएशन बेस्ड टेक्निक्स बेस्ड ऑन केरास। अगर आपको केरास का नाम सुनो तो केरास के ऊपर बेस करते हैं, बट करंटली आर वर्किंग ऑन scikit-learn, सो वी डोंट गोना यूज दोस। और यूजुअली इनकी मार्केट में मेजर इम्प्लीमेंटेशन है भी नहीं इन एल्गोरिथम्स की फ्रॉम scikit-learn। तो दैट इज व्हाई आई हैव पुट जस्ट ओनली 3 एल्गोरिथम्स ऑफ मशीन लर्निंग, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। डोंट अज्यूम कि आपको काम नहीं आएंगे ये। ऐसा ना हम बाद में कहें कि भाई हुज़ैफा, हाँ भाई ने कहा था कि काम नहीं आएंगे तो उनको छोड़ दो। ऑलराइट, सर्कल का रेडियस मॉडल तो अपनी मर्जी से करेगा ना, हमने क्यों दी। बिल्कुल, अगर मैं इसको यहाँ पे लेट मी दिए बेट, सर्कल अब मॉडल ने करा अपनी मर्जी से। ठीक है, मॉडल अपने अपनी मर्जी से करा कि भाई ये रेडियस रखना है। उसने जनाब पूरे पूरे डाटा को ले लिया। अब आप क्या करोगे यहाँ पे? लेट मी टेल मी व्हाट विल यू डू हियर राइट नाउ। भाई, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि इसमें लेबल्स नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें आप पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं करोगे। यू हैव टू डू परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ पैरामीटर ट्यूनिंग, बिकॉज दिस इज जस्ट अ मशीन लर्निंग। दिस इज नॉट अ मास्टरमाइंड गैन्स और ऑटो इनकोडर्स जो सब कुछ थिंकिंग एबिलिटी देते कंप्यूटर को, खुद से सोच रहे अच्छा ये यूं जा रहा है और ये यूं जा रहा है तो मैं उसको अलग अलग कर दूं। कंप्यूटर इज नॉट हैविंग that type of scenario right now. Even though in GANs, autoencoders, CNN, RNN, जितने ये हमारे पास ट्रांसफर लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होता है, यहाँ पे भी हम न्यूरल आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हमारा न्यूरल आर्किटेक्चर परफॉर्म करेगा। वो भी हमें खुद करना पड़ता है। अगर सारा काम कंप्यूटर खुद करने लग जाता तो एआई को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती। दैट इज व्हाई इन नटशेल बात करूंगा, दैट इज वी हैव टू पास दिस पैरामीटर है। तभी हमने पास किया पैरामीटर इज इक्वल टू वेट। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि ये मिनिमम सैंपल 5 ले रहा है, 0.5, ये सब यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स आ रहे हैं। और राइट, और इधर क्या कर देंगे हम, 0.5 कर देंगे और इसको रन कर देंगे। अच्छा, ये मिनिमम सैंपल बाय डिफॉल्ट 5 दे रहा है ना, तो दैट इज वाई ये 5 पे सही रहेगा। यहाँ मैंने 5 पास कर दिया। 5 5 5 5। लॉल, व्हाट जस्ट हैपेंड? ये 0.05 था आई गेस। कंट्रोल F9। या सॉरी फॉर दैट, 0.5 बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो 0.5 तो ग्राफ का आधे से ज्यादा ग्राफ, पूरा ग्राफ आ गया, तो वो पूरा ही उसने ले लिया ना डिस्टेंस। आप खुद देखो, अगर इतना बड़ा रेडियस होगा तो पूरा का पूरा डाटा ही आ गया उसमें। तो इट्स 0.05 नॉट 0.5। एनी फर्दर क्वेश्चन गाइस? ऑलराइट,
Can you repeat basis on this basis? All right, I will give a recap after 2 minutes. Let me see some other question as well. All right, I have read all the questions. Now I will answer one by one. First question, one of the most amazing. How we gonna see that clusters हमारे पास कौन कौन से हैं और एक ने बोला that what is red or green representing. I have mentioned red. अच्छा कोड को थोड़ा सा re-explain कर देता हूँ मैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे हम एक एरे बिल्ड कर रहे हैं किसका, एक इस कलर का, ये हेक्साडेसिमल कलर कोड है और ये बेसिकली जो है रेड है, ये बेसिकली ग्रीन है। किस तरीके से, क्योंकि ये शुरू के जो दो थे वो रेड थे और ये जो बीच के दो होते हैं वो ग्रीन होते हैं और आखिर के जो दो होते हैं वो ब्लू के होते हैं। मैं चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ, लेट मी मेक इट राइट, अपनी तरफ से कोई भी कलर डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से एक कलर कोड डाल दिया है। नाउ लेट्स सी कौन सा कलर हमारे पास आते हैं। ओहो, गुड कॉम्बिनेशन। सो नाउ वी आर प्रिंटिंग दिस क्लस्टर, हमने यहाँ क्लस्टर प्रिंट कर दिया जस्ट फॉर शशका एंड देन वी आर प्लॉटिंग दिस स्केटर। अब हम क्या करेंगे, हमने लिखा पीरियड और स्केटर, यहाँ पे हम x1 और x2 प्लॉट कर रहे हैं। अब साइज हमें रख दिया 5, ठीक है। प्लॉट हम ऊपर भी कर रहे थे लेकिन कलर किस बिहाफ पे चेंज हो रहे हैं तो वो हम देखें कलर्स किस बिहाफ पे चेंज हो रहे हैं। हमने लिख दिया कलर्स, कलर इज इक्वल टू कलर्स। तो जो ये एरे होगा ना, वो मतलब यहाँ पे लिखा दिख रहा है वाई प्रिडिक्ट, जो ये एरे होगा हमारे पास या जो अलग क्लस्टर होगा वो इस एरे को फॉलो कर रहा होगा, इस कॉलम को फॉलो कर रहा होगा, और जो दूसरा क्लस्टर होगा वो पूरा का पूरा इस एरे को फॉलो कर रहा होगा। ये कलर विजुअलाइजेशन तो इस तरीके से हो गई। अब मैं एक दफ़ा DBSCAN का ओवरव्यू दे रहा हूँ जाते जाते, और वो बहुत गौर से देखना दैट हाउ DBSCAN इज वर्किंग बिकॉज सम पीपल जॉइन लेट टू सम इश्यूज। Alright, so DBSCAN learning by name means density based special clustering of applications with noise. ये मैं खुद देख के बता रहा हूँ because I can't remember the entire thing. इस एल्गोरिथम की, इस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम की जो बेसिक चीज़ है या आप कह लें बेसिक वीकनेस है या बेसिक वीकनेस ऑफ परफॉर्मेंस है, वो डेंसिटी है। तो उसके बाद नॉइज है। इट सीम्स लाइक दिस हैव टू लेग्स, एक डेंसिटी और एक नॉइज, और इन दो लेग्स के ऊपर ये खड़ा हुआ है। नॉइज की लेग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर DBSCAN, बट leg for density is very important for this algorithm. Now we'll perform density based clustering, और किस लिए परफॉर्म होता है, इट्स यूजुअली गुड फॉर यू कैन से डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग या डेटा को आप जब रीजनरेट कर रहे हो तो आगे जाके आप देखोगे ये बहुत एडवांस या मास्टर क्लास होगी इंशाल्लाह, कि इसमें नहीं नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर, कि आपके पास डेटा बहुत कम होगा और आपका डेटा चाहिए ज़्यादा। आप डीप लर्निंग में कहते हो डेटा जाने दो, तो जितना हमें डेटा दे दो, आपके पास कंप्यूटेशन पावर होनी चाहिए बस। तो उस सिनेरियो में आपको अगर डाटा ही बहुत कितना कम हो कि आपको यार तो बस मशीन लर्निंग ही काम कर सकती है, डीप लर्निंग के लिए तो कुछ है ही नहीं, और मॉडल कहीं ओवरफिट ना हो जाए, क्योंकि कम डाटा के ऊपर भी मॉडल बहुत ज़्यादा ओवरफिट हो जाता है। तो उस सिनेरियो के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, हम उसी डाटा के क्लोन्स क्रिएट कर रहे होंगे, आर्टिफिशियल डाटा जनरेट कर रहे होंगे बाय यूजिंग AI इटसेल्फ। तो वहाँ पे ये दिस इज अ काइंड ऑफ डेटा माइनिंग अप्रोच। ये डेटा माइनिंग के अंदर भी यही काम हो रहा होता है। तो वहाँ पे the one of the part of some algorithm DBSCAN is involved, कहीं ना कहीं DBSCAN involved जरूर हो रहा होता है। So which we will see in future. तो DBSCAN कर क्या रहा होता है, किस तरह परफॉर्म कर रहा होता है। DBSCAN randomly put some points जिसको हम बोलते हैं कोर पॉइंट, और वो बोलेगा कि कोर पॉइंट के अंदर मेरे पास 3 जो है ना डेटा पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। जगह जगह उसने पॉइंट डाल दिया, उसमें 3 डेटा पॉइंट्स आने चाहिए। अब 3 डेटा पॉइंट्स क्यों आने चाहिए भाई, 4 क्यों नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमने वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मिनिमम पॉइंट जो है ना वो 3 होने चाहिए। लाइक हेयर जैसे हम इसमें स्पेसिफाई करें कि मिनिमम पॉइंट 5 होने चाहिए, तो वो 5 पॉइंट्स के ऊपर ही एक सर्कल ड्रॉ कर रहा होगा। अब इस एक कोर के जो सर्कल ड्रॉ किया है, उस सर्कल किस बिहाफ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा है, तो वो 2 चीज़ें होती हैं, एक एलिप्सन और एक मिनिमम पॉइंट्स। मिनिमम पॉइंट्स 3 आने चाहिए, और कितने रेडियस पे आने चाहिए, वो रेडियस होगा हमारे पास एलिप्सन। वो रेडियस ऑफ सर्कल एलिप्सन कहलाएगा, जो कि हम वैल्यू पास कर रहे हैं। उतना बड़ा सर्कल बनाएगा। अगर उसके अंदर इन केस 3 पॉइंट नहीं बनते
So it will shift to another data point, another core point for making a perfect circle in which it can have minimum 3 data points. ठीक हो गया? अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर होता, अब ये होता यहाँ पे, अब यहाँ पे होने के बाद ये फॉर एग्जांपल सर्कल ड्रॉ करता है ऐसे, और यूं सर्कल हमारा बन जाता। हार्डली एक या दो हमारे पास इनपुट में आ जाते हैं स्पेसिफाइड एलिप्सन, तीन ना आते। सो इट गोइंग टू बी मूव लाइक हेयर। अब यहाँ पे मूव करने के बाद फिर उसी एलिप्सन की बेस पे सर्कल ड्रॉ करेगा। अब इसके बाद फिर एक आया होता, दो आए होते, एक ना आया होता, तीन आए होते, सॉरी, वी आर स्टिल हैविंग वन लेस। अगर अब यहाँ पे करता तो उसके पास सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट आया होता, दैट इज व्हाई इट इज शिफ्टिंग हियर। अब यहाँ पे जब सर्कल ड्रॉ करेगा उसी एलिप्सन पे, तो उसके पास तीनों के तीनों तीन डेटा पॉइंट आराम से उसके पास आ रहे हैं। ज्यादा हो सकते हैं इसमें, मजे की बात यह है कि ज्यादा हो सकते हैं। इन दिस वी आर नॉट गिविंग अ फिक्स वैल्यू, इन दिस वी आर गिविंग अ मिनिमम पॉइंट। ज्यादा इसमें बिल्कुल हो सकते हैं, 4 5 6 7 भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तीन दिए हैं तो 4 5 ज्यादा नहीं होते कभी किसी चंद सर्कल के अंदर, जब डेटा बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो और आपका एलिप्सन इतना बड़ा हो तो फिर आप क्या करोगे। ऑलराइट, तो इसको रेडियस को हम एलिप्सन बोल रहे होते हैं, इसको बॉर्डर पॉइंट कहते हैं। जो डेटा पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, कोर पॉइंट वो होते हैं जिसके ऊपर सर्कल ड्रॉ हो रहा होता है, और जो किसी भी खाते में नहीं रहते हैं उनको हम बोलते हैं नॉइज पॉइंट्स। तो ये नॉइज पॉइंट जो होते हैं ये बेसिकली हमारा नॉइज होता है, और डीबी स्कैन इज वेरी सेंसिटिव टू दिस एल्गोरिथम, टू दिस थिंग। नॉइज के ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर हम यहाँ देखें तो डीबी स्कैन वही इस तरह स्कैन हो रहा ना, वो होता है, एल्गोरिथम परफॉर्म करता है। सर्कल हमारे पास ये डॉ जा रहे हैं, ये सर्कल डॉ जा रहे हैं ग्रुप वाइज। देखिए बिल्कुल ये चंद डेटा पॉइंट को गेन कर रहा है, और भाई डीबी स्कैन ना अपना क्लस्टरिंग परफॉर्म कर रहा है। यहाँ करने के बाद इसने इसको अलग क्लस्टर परफॉर्म कर दिया, फिर उसने इसको अलग क्लस्टर परफॉर्म कर दिया, इसने इसको अलग क्लस्टर परफॉर्म कर दिया, और ये बाकी सब जो थे हमारे पास नॉइज थे। अब नॉइज जो है ना, या दो तरीकों से पता लग सकते हैं। यूजुअली डीबी स्कैन की अप्रोच ये होती है कि उनकी वैल्यूज की जो डेंसिटी है वो किसके साथ ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है, अगर इसके करीब रेड वाला क्लस्टर पड़ रहा है तो ये इनको रेड के ही शुमार में देगा। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये हो सकता है कि इनको इनके शुमार भी देते, इनके शुमार भी देते। अगर हम यहाँ पे अपनी डायग्राम देखें तो यहाँ पे भी इसने कुछ करे होंगे जो एक्स्ट्रा नॉइज होता है। जैसे यहाँ पे देखें ऑरेंज के साथ साथ ग्रीन भी पॉइंट्स आ गए हैं कहीं ना। तब क्या हो रहा है कि ये ग्रीन पॉइंट हमारे लिए एज अ नॉइज है। इसने ये नहीं कहा कि भाई इसके अंदर आ रहा है तो इनको ऑरेंज कर दो, नहीं। ये डेंसिटी बेस होते हैं और डेंसिटी के ऊपर चल रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन ऑफ एक्स एंड एक्स वन एंड एक्स टू एंड वाई। उसके ऊपर इनकी डेंसिटी होती है, और डेंसिटी के अकॉर्डिंग किसी ना किसी एक में उसको क्लस्टराइज परफॉर्म कर देता है। सो दिस इज हाउ अ डीबी स्कैन एल्गोरिथम वर्क्स। ठीक है ना। और उसकी अगर हम कंपेरिजन करें लास्ट एल्गोरिथम से जो हमने कल परफॉर्म किया के मींस, तो इस दो टैब से हमारे पास डेटा सेट है। इस पे तो डीबी स्कैन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, के मींस इसमें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, बिकॉज इट लुक्स लाइक दैट के मींस सिंपली डूइंग क्लासिफिकेशन जो कि हाइपर प्लेन क्लासिफिकेशन है, और लेकिन ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। ठीक हो गया। वो सही तरह क्लस्टर डिवाइड नहीं कर रहा। बट हेयर इफ वी आर पासिंग 3 वैल्यूज इन के मींस, और क्या पता ये क्लस्टरिंग हो अच्छी, तो यहाँ पे के मींस और डीबी स्कैन का डिपेंड सब पैरामीटर दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब डीबी स्कैन तो दो ही क्लस्टर परफॉर्म कर रहा है। इफ यू हैव मेंशन के, अब डीबी स्कैन का मेंशन के अलावा भी कुछ तरीके होते हैं। अब यहाँ पे वो अपने सर्कुलर वाले मेथड से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हमने के मींस दही ये दिया कि भाई 3 वैल्यू परफॉर्म करो, तो कुछ भी करके 3 क्लस्टर ही बनाएगा लाजमी। Here we are seeing कि डीबी स्कैन और के मींस इस तरह का डेटा सेट पे जो ब्लॉबिंग डेटा सेट होता है उसमें बहुत आराम से परफॉर्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे डीबी स्कैन फेल हो गया, बिकॉज क्योंकि इन सब की डेंसिटी बहुत ज़्यादा डेंस थी, इन सब में नॉइज बहुत ज़्यादा था। और डेंस से मुराद ये था कि दो डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर अगर सेपरेशन थी भी तो उनकी डेंसिटी थी ज़्यादा डेंस है कि इसको पूरे को एक साथ ले जा चुका है। यहाँ पे एलिप्सन एरर बहुत ज़्यादा होगा कि भाई एलिप्सन आपने थोड़ा ले लिया कि पूरा पूरा डेटा सेट हमारे पास आ गया। तो उस सिनेरियो के अंदर हम के मींस यूज़ करते हैं इफ़ वी नो दी राइट अमाउंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट क्लस्टर्स इन अ डेटा सेट, तो वहाँ पे हम लोग के मींस यूज़ कर रहे होते हैं। दिस वॉज द कंपेरिजन इन डीबी स्कैन एंड के मींस। ऑलराइट, तो सारा एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। डीबी स्कैन का एक दफ़ा ओवरव्यू दोबारा दे दिया है। एनीथिंग एल्स लेफ्ट?
नियरेस्ट नेबर और मिनिमम पॉइंट्स एक ही हैं, यस ब्रदर एक ही हैं, नियरेस्ट नेबर मीन्स द सेम थिंग. Our final project will be on recommendation system, inshallah. A recommendation system which Netflix was. I have never built that one by myself as well. I have seen the algorithm. I have studied that as well. It is easy one, but Netflix have used that algorithm up till 2006 or 2009, I guess. No, yeah, Netflix has used algorithm up to 2009 or 2010, and then it moves to deep learning algorithms. और यूट्यूब भी 2010 तक उस algorithm को यूज करता था for our recommendations. So our final project will going to based on that. जी, एपीएस इज बेसिकली, एपीएस किस चीज़ पर डिस्टेंस होता है. दीज आर, किस तरह बताऊं, अब हमारे पास कोई इसमें सब मैग्नीट्यूड होता है, इसमें हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता लाइक सेंटीमीटर, या हम जब ग्राफ में विजुलाइजेशन करते हैं तो हम यूनिट को अलग से स्पेसिफाई करते हैं. वी नेवर से 1 सेंटीमीटर के बाद 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, फिर 4 मीटर आ जाएगा, ऐसे ग्राफ में कभी नहीं होता. पूरा स्केल किसी एक स्पेसिफिक यूनिट का होता है. और अब जब डेटा में विजुलाइज करते हैं तो वहाँ पे हम यूनिट स्पेसिफाई नहीं करते. डेटा जिस जिस मैग्नीट्यूड के हिसाब से डेटा विजुलाइज हो रहा होता है, उसी मैग्नीट्यूड के हिसाब से एलिप्सन का भी यूनिट होता है. अब अगर आपका डेटा सेट किलोग्राम में था या मीटर में था, जिस रेशो के मुताबिक भी था, आपके एलिप्सन का भी वही यूनिट होगा. सो आप जो भी पास कर रहे हो वैल्यूज के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू डेटा आपके डेटा सेट, उसका आपके एलिप्सन का साइज होगा. ठीक है. एलिप्सन बेसिकली इट्स अ रेडियस ऑफ सर्कल टू बी परफॉर्म बाय द कोर पॉइंट. अगर अब मैं यहाँ पे एक यूनिट खोल खोल कर रख दूँ ताकि इसके को देख के लोगों के दिमाग में और सवाल भी आते रहेंगे. तो दिस इज एलिप्सन. यहाँ पे जो ईल बना हुआ है, दिस इज सिंबल ऑफ एलिप्सन. इस कोर पॉइंट के जो रेडियस होता है इसका, इसको हम एलिप्सन बोलते हैं. ऑलराइट. Is it necessary that these circles overlap each other? This is not necessary, but this is often scenario. अगर overlapping नहीं हो रही होती ना, और distance ज़्यादा तवील हो जाए, तो वो फिर density आपकी जो है ना, इतना distance आपका gradient distance इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब आपको different clusterized form में बना देता है कि भाई ये different cluster है, दूर जाओ यहाँ से. तो इसलिए usually overlapping हो रही होती है. That's something related to lab thing. Again, good question. All right. For determining different kinds of user in a website, which kind of clustering is possible is preferable. All right. So yeah, this is known as basically customer segmentation. Very good one. I will love to do projects on this. मैं ज़्यादातर hierarchical clustering use करिए. We'll see that on tomorrow. But for my, if you say ask about me, I have used hierarchical clustering in for customer segmentations, and we'll see that tomorrow. K-means clustering also can perform good in that scenario, because customer segmentation we usually know the taste of customer, like who are from. अगर हम टेस्ट का जो टेस्ट का थ्रेशोल्ड उस पर रखें हम कि लोग किस डिपार्टमेंट को ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, लाइक people are more related to groceries, or more related to beers, more related to medicines, more related to some other household stuffs. तो इस तरह के अगर आपको नंबर ऑफ वेरियस फाइंड है तो K-मींस तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा. अदरवाइज वी यूजुअली परफॉर्म हायरार्किकल क्लस्टरिंग. ओके. कि डीबी स्कैन के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट अयान, मेरे पास कोई डाटा सेट नहीं है फॉर प्रैक्टिस. आप डाटा सेट खुद बना लें बाय सीइंग ऑन द इंटरनेट. मेक मूव्स कर लें, सैंपल चेंज कर लें, मेक ब्लॉब्स कर लें, मेक क्लासिफिकेशंस कर लेंगे तो बिल्कुल मून सही है. इसकी इंडस्ट्री की छेड़खानी करें. डाटा माइनिंग का कभी पढ़ाऊँ मैं इन फ्यूचर, या कोई और ट्रेनर कभी पढ़ाए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा. वो स्टार डीबी स्कैन से करेगा, या सेकंड हेड वर्कशॉप भी आपकी डीबी स्कैन से होगी. तो in that you can understand as well.
Someone has asked, are you a student or working somewhere? I am both, because I will never stop learning. और जब तक मैं लर्न कर रहा हूँ, I will be a student and I'm also working somewhere. Of course, otherwise, how can I afford my pocket money? Pocket expenses, of course. Is there any more methods for? But my major devotion is towards Google, and I'm totally working with many members at Google as well. Okay. Any further question, guys? कोई भी क्वेश्चन तो बता दें मुझे. मैं एक बार देख लूँ क्वेश्चन रह ना जाए, then we will end the class. Is there any method to find distance? हाँ, Euclidean formula implement कर दो. That's a mathematical formula. आप बिल्कुल implement कर सकते हो यहाँ पे. For example, किस तरह implement करोगे? Let me see that as well. अब यहाँ पे हमारे पास distances ही आ रहे हैं एक तरीके का ना, कि किस x1 से x2 के distances कितने हैं. लेकिन अगर आपको specific point पे करना है, तो वो देखना पड़ेगा. आपको एल्गोरिथम बाय खुद बनाना पड़ेगा. और अगर आप ये चाह रहे हैं कि एक एलिप्सन में कितने, एक सर्कल में कितने आ रहे हैं नियरेस्ट नेबर, तो वो लेस देन 5 ही होंगे, या उनका डिस्टेंस कितना है, तो वो लेस देन 5 भी लेस देन एलिप्सन साइज होगा. या डायमीटर बना रहे हैं उसको 0.05 है ना हमारे पास, डबल कर लेंगे तो 0.1 बन जाएगा. तो 0.1 से कम ही डिस्टेंस हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता. उसके लिए एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा खुद से. एंड आई विल मेक इफ आई विल बी फ्री. एनी फर्दर क्वेश्चन गाइस? ऑल क्लियर? How can we work with Google? All right, find any Google developers community, enroll yourself there, and work on Google technologies. And Google usually acquires some students, because Google में core level job आप तब तक नहीं कर सकते तब तक आप मास्टर्स PhD ना हो जाओ. मास्टर्स को भी एक low level job मिल रही होती है. And I'm never into jobs, as you already know me. मैं job से ज़्यादा entrepreneurship support करता हूँ. I have my own startup at very initial stage, and I'm gonna build my own company very soon. But teaching is my enthusiasm, which is I want to do for my students, which I can't find guidance in my learning age, so I want to teach other as peers. जब मेरी learning हो गई है, it is why I'm doing all this stuff. So you guys can work at Google as well. Google is no different than any other company, but preference is different. You should be great at maths, and of course, Google is the company which invents tools, and other companies are the companies who use their tools. So there is some difference. That is why their threshold of interviewing is a little bit difficult. So yeah, you can work with Google. You can work for Google as well. You can build solutions. You can find nearest Google developer community and do multiple things. All right. So people saying that everything is clear. So we'll end this class today. All right. Allah Hafiz. Bye bye.